So when we see about David, इसके लिए जब हम दावीद को देखते हैं, David had so many titles for him. और दावीद के पास बहुत सारे ऐसे शीर्षक उसको थे, But among that all titles, लेकिन उन सारे शीर्षकों के बीच में for an example, he was a musician, वो एक संगीतकार he थे, was a singer, वो गीतकार he was a गायक shepherd थे, boy, वो एक चरवा था, he was a warrior, वो एक योद्धा था, he was a handsome looking boy. वो सुंदर दिखने वाला लड़का था. So there are so many characters of David in the Bible. ऐसे दावीद के बहुत सारे चरित्र है बाइबल Out में. of that all things, उन सारी चीजों के बीच में three things are very important which has done by God upon him. उनमें से तीन चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है जो परमेश्वर ने उसके ऊपर की. So the three things are this. और वो तीन चीजें ये है, He was a king, वो राजा था, he was a priest, वो एक याजक था, he was a prophet. और वो भविष्यवक्ता था. He was a king, वो राजा था, he was a priest, वो याजक था, he was a prophet. और वो भविष्यवक्ता था. Only one person in the Old Testament had these three things together. और पुराने करार में एक ही व्यक्ति था जिसके पास ये तीनों चीजें एक साथ थी. He was a king, वो राजा था, he was a priest, वो याजक था, he was a prophet. और वो एक भविष्यवक्ता था. So in the New Testament, और नए करार में only Jesus सिर्फ यीशु is called the king, priest and the prophet. यीशु को ही राजा, याजक और भविष्यवक्ता कहा गया You're है. understanding? So now this David had so many songs which is composed to God. अब ये दावीद के पास बहुत सारे गीत थे जो उसने परमेश्वर के प्रति बनाए थे. This is also 103 is one of the psalm. और 103 One of the ये song of David. ये 103 ये भी दावीद का एक गीत है. So now when we read it, 1 Samuel chapter 7, there also David has a song for God. और पहला शमूएल 7वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं उसमें भी दावीद का एक गीत है परमेश्वर के प्रति. 2 Samuel chapter 22 also is a song of David. दूसरा शमूएल 22वें अध्याय में ही दावीद का एक गीत है. So now you see he has composed so many songs. और अब हम देख पाते हैं कि उसने बहुत सारे गीत उसने बनाए हैं. Most of the song was his experience. और उसमें से कई गीत उसके अनुभव ही थे. What he experienced from God. जो कुछ उसने परमेश्वर के द्वारा उसने अनुभव लिए. With the practical experience the song came. और उस वास्तविक अनुभव से वो गीत आए. Sometimes it was a prophetical song. कई बार ये भविष्यवाणी के गीत होते हैं. So Psalm 69 is a prophetical song. और जो भजन संहिता 69 है वो That is भविष्यवाणी का about गीत the है. cross of Jesus. वो यीशु के क्रूस के बारे में So है. many prophetical songs he sang. और कितने सारे भविष्यवाणी के गीत उसने गाए. So now we see about David's psalms. There are so many things to tell. जब हम दावीद के गीत को देखते हैं कितनी सारी चीजें उसमें से बताने लायक. He was the prophetical song. He has sang so many things about the future of the nation. भविष्यवाणी के गीत उसने भविष्य के बारे में, राष्ट्र के भविष्य के बारे में कई बार गाए. What God is going to do with this small nation called Israel. इस्राएल एक छोटे राष्ट्र के साथ परमेश्वर क्या करने वाला है. How God is going to bring a savior for this nation. इस राष्ट्र के लिए परमेश्वर कैसे बचाई करता लाने वाला है. How this nation will become a blessing to other nations. और ये राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के लिए कैसे आशीर्वाद बनने वाला है. So now when it comes to this psalm, और जब ये इस भजन संहिता पे आता Psalm है 103 verse 2. 103 भजन संहिता दूसरा वचन. When it comes to this song, जब इस गीत के ऊपर आता he है, is telling to himself. वो अपने आप से कह रहा है. He is telling to his soul. वो अपने आत्मा से कह He रहा is telling है. to his spirit. उसके आत्मा He से वो is कह रहा telling to है. his mind. उसके मन को कह He रहा is है. telling to his situation. उसकी परिस्थिति को कह He is रहा seeing है. all his blessing and telling. वो सारे अपने आशीर्वाद देख के कह रहा है. Sometimes we have to be like this. कई बार हमको ऐसे होना है. Amen. We have to tell to our spirit. हमारे आत्मा से हमें कहना We है. have to tell to our soul. हमारे प्राण को हमको We have कहना to है. tell to our mind. हमारे मन को हमको We कहना have to है. say to our eyes. हमारे आंखों को हमको We have कहना to है. tell to our ears. हमारे कानों को हमको कहना See है. what God has done. देखो क्या परमेश्वर ने किया है. Forget not his benefits. उसके जो सारे उपकार है उसको मत भूलो. People of God, परमेश्वर के लोगों, many time anointed people, why they fail in their life means कई बार अभिषेक लोग उनके जीवन में नाकाम होते हैं. इसका मतलब they forget what God has done. जो कुछ परमेश्वर ने उनको किया है They वो भूल only जाते हैं. expect from God. वो सिर्फ परमेश्वर से अपेक्षा रखते हैं. Did you understand? क्या आप समझ गए? Many times the anointed people get discouraged. कई बार अभिषेक लोग निराश हो जाते They हैं. forget the benefits of God. वो परमेश्वर के उपकारों को They भूल forget जाते the हैं. blessings of वो God. परमेश्वर के आशीर्वादों को भूल They जाते only हैं. expect from God. वो परमेश्वर से अपेक्षा They रखते will say, हैं. this has not happened, this has not happened. वो कहते हैं कि ये नहीं हुआ, वो This नहीं is what हुआ. you have to do, God.
परमेश्वर तुम्हें ये करना Oh, है। this is what I am praying to you, God. परमेश्वर मैं तुमसे इस But they चीज के लिए forget प्रार्थना what कर रहा God हूँ। has done behind. लेकिन परमेश्वर ने पीछे क्या किया है ये वो भूल जाते David is हैं। telling like this. डेविड ऐसे कह रहा Oh, है, my soul, हे मेरे प्राण, forget not all his blessings. उसके सारे उपकारों को तू मत भूलना। In one translation it says like this. एक भाषांतर में ऐसे लिखा है, Forget not all his blessings. और उसके सारे आशीर्वादों को कभी मत भूलना। But in this translation it says like this. लेकिन इस भाषांतर में ऐसे है, Forget not all his benefits. किसी भी उपकार को मत। Telling to himself. वो अपने आप से कह रहा है, He's telling to himself. वो अपने आप से कह रहा है, So many things God has done. कितनी सारी चीजें परमेश्वर ने की है। Few things we will learn today. कुछ चीजें हम सीखेंगे May आज। not be all the things, शायद सारी चीजें नहीं, but few blessings what God brought in David's life. लेकिन दावीद के जीवन में कुछ आशीर्वाद जो परमेश्वर And ने as we are लाए, meditating on that, और जैसे हम उसके ऊपर अध्ययन करेंगे, I will surely believe मैं निश्चित रूप से that विश्वास रखता God will हूँ remind your blessings in your कि life. परमेश्वर तुम्हारे जीवन में जो आशीर्वाद दिए हैं उनको तुम्हें He याद will remind दिलाएगा। how God has benefited you. परमेश्वर ने कैसे तुम्हारे ऊपर उपकार किए हैं He वो will तुम्हें याद definitely दिलाएगा। remind you how He blessed you. वो जरूर तुम्हें याद दिलाएगी कि उसने कैसे तुम्हें आशीर्वाद किए। Okay, number one, David said like this. पहली चीज दावीद ने He's ऐसे telling कही, to himself. वो अपने आप से कह He's रहा है, telling to his spirit. वो अपने आत्मा से कह He's रहा telling है, to his mind. उसके मन को कह रहा Do है, you know? क्या तुम जानते I हो, was the last in my family. मैं मेरे परिवार में आखिरी था, Nobody cared me. किसी ने भी मेरी चिंता I नहीं was the की, least among the family. मैं परिवार में सबसे छोटा था, Oh, small responsibilities given to me. छोटी सी जिम्मेदारी मुझे दी गई I was थी, always in the मैं wilderness. हमेशा जंगल में But हुआ one day it करता था। happened like लेकिन this. एक दिन ऐसे हुआ, 1 Samuel 16 verse 13. पहला शमूएल 16:13, Oh, that day was a great day in my और वो life. दिन मेरे जीवन में महान दिन First था। benefit the Lord has given in my life. पहला उपकार जो परमेश्वर ने मेरे The जीवन में first किया, benefit God made in David's life डेविड के जीवन में पहला उपकार जो परमेश्वर ने among किया, all my brothers, मेरे सारे भाइयों के बीच among में, all my family members, मेरे परिवार के सारे लोगों के बीच I में was anointed. मैं अभिषेक बन गया। Are you anointed in your family? क्या तुम्हारे परिवार में तुम अभिषेक हो? Or you are anointed in your family? क्या तुम तुम्हारे परिवार में अभिषेक The Lord हो? is telling, प्रभु कह रहा है, this was the first thing I done in your life. ये पहली चीज मैंने तुम्हारे जीवन में की। How many believe this morning that you are anointed by God? कितने लोग इस सुबह विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के द्वारा तुम्हें अभिषेक किया You are गया है? anointed specially in your family. तुम्हारे परिवार में तुम अभिषेक हो, You are very special to God. तुम परमेश्वर के लिए बहुत ही विशेष। I always say like this. मैं हमेशा ऐसे कहता हूँ, When this anointed day came in David's life, जब ये अभिषेक दिन दावीद के जीवन में आया, in the 16th chapter of 1 Samuel, पहले शमूएल के 16वें अध्याय में verse 11 says like this. 11वां वचन ऐसे कहता है। What verse 11 says? 11वां वचन क्या कहता है? पूर्ण See चीज now, in the 16th chapter, 16वें अध्याय में when Samuel entered in Bethlehem, जब शमूएल बेथलेहम में आया all the elders of the people came and said like this. और सारे वडील लोग आके उन्होंने ऐसे कहा, They asked Samuel in verse 5 and 6 like this. 5वें और 6ठे वचन में उन्होंने शमूएल को When पूछा और कहा, Samuel came, जब शमूएल आया, whole city, whole elders were feared, सारे वडील एकदम डर गए, so much afraid. वो सारे पुरनिये वो थरथराते Verse हुए 4, they कांपे। asked him like this. Verse 4, all the elders asked Samuel, चौथे वचन में शमूएल को सारे पुरनिये लोगों ने with the पूछा trembling, they said to him like this, और वो थरथराते हुए उन्होंने ऐसे कहा, did you come with peace? क्या तुम शांति के साथ आए हो? Why suddenly you came? तुम अचानक क्यों आए? Why suddenly you visited this Bethlehem? ये बेथलेहम को तुमने अचानक भेंट क्यों दिया? That means इसका मतलब before the prophet comes, भविष्यवक्ता आने के there पहले will be a very big preparation in the city. और शहर में बहुत ही बड़ी तैयारी होती थी। Is there anybody believe in the prophetic anointing? क्या भविष्यवाणी के अभिषेक के ऊपर कोई विश्वास रखता है? Do you believe the prophetic anointing is upon you? क्या तुम्हारा विश्वास है कि भविष्यवाणी का अभिषेक तुम्हारे There ऊपर will है? be a big preparation for you. फिर तुम्हारे लिए बहुत बड़ी तैयारी होगी। When the prophet is coming to visit the city, जब भविष्यवक्ता शहर को भेंट देने के लिए whole आता है, city will get ready. पूरा शहर तैयार हो जाता It's है। more than a prime minister visiting the town. और ये city. पंतप्रधान उस शहर को भेंट देने से भी ज्यादा Big है। preparation. बड़ी तैयारी। But when one day it happened like this, लेकिन एक दिन ऐसे हुआ, no message is given to the city, शहर को कोई संदेश नहीं दिया no गया, message to the elders. बड़े लोगों को कोई संदेश नहीं दिया Suddenly गया। Samuel arrived. अचानक शमूएल आ गया Oh, everybody thought like this. और हर
किसी ने ऐसे विचार किया Oh, he might have come with something warning to us. और वो शायद कोई चेतावनी लेके हमारे पास आया Suddenly he होगा। entered means अचानक वो आया maybe मतलब God brought some message for us. शायद परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ संदेश लाया Everybody हो। started fearing. हर कोई डरने लगा। With the trembling they came to Samuel. वो थरथराते हुए शमूएल के Did you पास come आए। with peace? क्या तुम शांति के साथ आए हो? Verse 5 says, और 5वां वचन कहता yes, है I came with peace. हाँ मैं शांति के साथ आया हूँ। Immediately somehow they prepared all the preparations. और तुरंत ही उन्होंने सारी तैयारियां की All the royal food is ready. और सारा शाही खाना तैयार हो All गया। the elders are ready. सारे पुरनिये तैयार हो Family गए। is ready. परिवार तैयार हो Oh, गया। brothers are ready. भाई तैयार हो गए। Samuel is ready. शमूएल तैयार हो गया। God is ready. परमेश्वर तैयार हो गया। But things are not moving. लेकिन चीजें आगे नहीं बढ़ रही थी। What does verse 11 says? 11वां वचन क्या कहता है? We will wait until he comes. और हम रुके रहेंगे जब तक वो आता नहीं है। When the anointed day comes in your life, जब अभिषेक दिन तुम्हारे जीवन में आता है, things will wait for you. चीजें तुम्हारे लिए इंतजार करेंगी। People will wait for you. लोग तुम्हारे लिए इंतजार Your family करेंगे। will wait for you. तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए इंतजार Anointed करेगा। will wait for you. अभिषेक तुम्हारे लिए God इंतजार will wait करेंगे। for you. परमेश्वर तुम्हारे लिए David is telling to himself like this, दावीद अपने आप से ऐसे कह Oh रहा my था, soul, हो हे मेरे मन, forget not his benefit. उसके उपकारों को मत That भूल। day what happened? उस दिन क्या हुआ? Who all ignored me, जिन सारे लोगों ने they मुझे all are दुर्लक्ष्य waiting किया, for me. वो सारे लोग मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। The Lord is telling today, परमेश्वर आज तुम्हें कह रहा the है, Lord is telling today, प्रभु आज कह you रहा are है, my anointed. तुम मेरे अभिषिक्त हो। The day I anointed you, जिस दिन मैंने तुम्हें अभिषेक oh किया, that day, उस दिन I made all people to wait for you. मैंने सारे लोगों को तुम्हारे लिए इंतजार करवाया Special food is ready. और शाही खाना तैयार था। Time is over. समय भी बीत गया था Oh, for the priest means for prophets and the priest knows all the special choicey food. और याजक और भविष्यवक्ता के लिए उनके लिए चुनाव का खाना होता है, All are waiting. लेकिन सब लोग इंतजार कर रहे थे। David is telling, और दावीद कह रहा Oh था, my soul, हे मेरे मन, forget not the day उस दिन को तू मत भूल, how all were waiting for me. कैसे सारे लोग मेरे इंतजार में थे। Oh, anointed of God, परमेश्वर के अभिषेक the तो Lord is telling, प्रभु कह रहा है, I anointed you. मैंने तुम्हें अभिषेक किया I है, anointed you. मैंने तुम्हें अभिषेक I किया made the है, people to wait for you. मैंने लोगों को तुम्हारे इंतजार में खड़ा किया। That blessed day upon your life. और वो आशीर्वादी दिन तुम्हारे जीवन के Oh, ऊपर, that blessed day when the anointing rested upon you. वो आशीर्वादी दिन जिस दिन तुम्हारे ऊपर Oh, अभिषेक that was a उतरा, special day for वो you. तुम्हारे लिए विशेष दिन था। That was sharing his experience to me. एक दिन भाई अपने अनुभव को मेरे साथ बांट रहा He था। clearly saw the vision. उन्होंने एकदम दर्शन को स्पष्ट रूप से देखा Oh, that was the anointed day. और वो अभिषेक दिन था। Today God is telling to all of you, प्रभु तुम सब के लिए आज कह रहा है, forget not your anointed day. तुम्हारे अभिषेक के दिन को मत भूलो। Today something is very hard for you. आज कुछ आपके लिए बहुत ही कठिन है। So today some big challenges in front of you. तुम्हारे सामने आज बहुत ही बड़ी Today चुनौती हो some सकती है। difficult situation is there for you. आज तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन परिस्थिति हो सकती But the है। Lord is telling like this, लेकिन प्रभु आज कह रहा forget है, not that day what I had done in your life. उस दिन जो कुछ मैंने तुम्हारे जीवन में किया, उस दिन को How मत I made the भूलो। people to wait for you. मैंने कैसे लोगों को तुम्हारे इंतजार में How खड़ा I किया। anointed you in the midst of all people. सारे लोगों के बीच में मैंने कैसे तुम्हें अभिषेक, The Lord is telling प्रभु to कह रहा each and है, every one, हर एक के लिए forget not the benefits of God. परमेश्वर के उस उपकारों को तुम मत भूलो। Oh, the Lord is telling, प्रभु कह रहा I है, anointed you with my anointing. मैंने मेरे अभिषेक से तुम्हें अभिषेक I किया। anointed you with the prophetic anointing. मैंने भविष्यवक्ताओं के अभिषेक से I तुम्हें अभिषेक anointed you किया। as a special person. मैंने तुम्हें अभिषेक किया एक विशेष व्यक्ति के तौर पे। You are a special for me. तुम मेरे लिए विशेष हो। And this anointed day और इस अभिषेक दिन पे brought all the goodness of God. परमेश्वर की सारी भलाई उसमें, Last 2 years. आखिरी 2 साल में, Last 2 years. आखिरी 2 साल में Just remember, सिर्फ याद करो, in each and every worship, हर एक आराधना in में, each and every fasting हर prayer, एक उपास प्रार्थना में how God anointed you. परमेश्वर ने कैसे तुम्हें अभिषेक किया, How deeply God anointed you. परमेश्वर ने कैसे गहराई से तुम्हें How अभिषेक, God anointed you in every time in your life. परमेश्वर ने कैसे तुम्हें हर समय तुम्हारे जीवन में अभिषेक Don't किया। forget, says उसको the मत Lord. भूलो, प्रभु कहता Today है। the Lord is telling, आज प्रभु कह tell रहा to है, your mind, तुम्हारे मन को कहो, tell to your heart, तुम्हारे हृदय को tell कहो, to your eyes, तुम्हारे आंखों tell से to your कहो,
situation, तुम्हारे परिस्थिति I को am an कहो, anointed of God. मैं परमेश्वर का अभिषिक्त हूँ, I am an anointed of God. मैं परमेश्वर का I अभिषेक am हूँ, anointed by God. मुझे परमेश्वर के द्वारा अभिषेक Anointing किया is गया resting है, upon me. अभिषेक मेरे ऊपर है, You are anointed. तुम अभिषेक The हो, anointing of God is resting upon you. परमेश्वर का अभिषेक तुम्हारे ऊपर, You are a special person for God. परमेश्वर के लिए तुम एक विशेष व्यक्ति हो, Don't forget that you are an anointed. तुम मत भूलो कि तुम एक अभिषेक हो, Your anointing will change all the situation around you. तुम्हारा अभिषेक तुम्हारे इर्द गिर्द की सारी परिस्थितियों को बदल This देगा, anointing came upon you ये अभिषेक तुम्हारे ऊपर आया to make you a blessed person. तुम्हें एक आशीर्वाद व्यक्ति बनाने के लिए, To make you a blessed person. तुम्हें एक आशीर्वादित व्यक्ति बनाने, That's why David telling like this. इसके लिए दावीद ऐसे, Psalm is composed when David was well settled. और ये जो भजन संहिता है ये बनाया गया था जब दावीद पूरी तरह एकदम व्यवस्थित स्थिति में था, So when David was a shepherd boy, that time he composed some songs. जब दावीद एक चरवा लड़का था तभी उसने कुछ गीत बनाए, That psalms were Psalm 23, 27. और उस समय के भजन संहिता 23 और 24 थे, When he was running away from Saul, जब वो शौल से भाग रहा था, when he was running away from Saul, जब वो शौल से that भाग is रहा the time था, he has written some songs. उस समय उसने कुछ भजन संहिता लिखे हैं, Oh, Psalm 37, 34, these all the psalms he read, he has sung that time. और 34 और 37 ये सारी भजन संहिता उसने उस समय बनाई थी, But this psalm, लेकिन ये भजन संहिता when he was in the palace, जब वो राजघराने में था, when he was a राजवाड़ा में, king, जब वो राजा था, God blessed him with all the blessings. जब परमेश्वर ने सारे आशीर्वादों के साथ उसको आशीर्वाद That किया is the था, time he is telling, उस समय वो कह रहा है, Oh my soul, हे मेरे मन, forget not the blessings of God. परमेश्वर के आशीर्वादों को मत भूल। Oh, today the Lord is telling, आज प्रभु कह रहा है, don't forget the anointed day in your life. तुम्हारे जीवन में उस अभिषेक के दिवस को मत भूलो, Day when God anointed you, जिस दिन परमेश्वर ने तुम्हें अभिषेक किया, that time उस समय God has started his blessed life in you. परमेश्वर ने उसका आशीर्वादित जीवन तुम्हें शुरुआत, Especially last 2 years, खास करके आखिरी 2 साल में, who all have joined this ministry, जो सारे लोगों ने इस सेवकाई who को all जो stepped जुड़े in the हैं, church of God, जो सारे लोग परमेश्वर के चर्च में बैठे हैं, the anointing rested upon you. अभिषेक तुम्हारे ऊपर उतरा है, And the Lord is telling, और प्रभु कह रहा है, don't forget the anointed day in your life. वो अभिषेक के दिन को तुम तुम्हारे जीवन में मत भूलो, From there, your blessedness will start. उस दिन से तुम्हारा आशीर्वादितपन शुरू हो जाएगा। Amen. He's telling, David is telling, दावीद कह रहा है, God made me anointed. परमेश्वर ने मुझे अभिषेक बनाया। Shall we confess? क्या हम कबूली देंगे? Shall we say like this? क्या हम ऐसे कहेंगे? Thank you, God, धन्यवाद प्रभु, for making me anointed. मुझे अभिषेक बनाने के लिए। Thank you, God, धन्यवाद प्रभु, for your anointing. तुम्हारे अभिषेक के लिए। Thank you, God, धन्यवाद for प्रभु, making me anointed. मुझे एक अभिषिक्त बनाने Thank के you, लिए। God, for धन्यवाद your प्रभु, anointing upon me. तुम्हारा अभिषेक जो मेरे ऊपर है उसके लिए। We are worried about so many things, हम कितनी सारी चीजों के लिए चिंता करते हैं, and that is not happened. This is not happened. वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, But the Lord is telling, लेकिन प्रभु कह रहा है, everything will happen हर चीज होगी, because my anointing is upon you. क्योंकि मेरा अभिषेक तुम्हारे ऊपर है। Everything what you desire जो कुछ तुमने इच्छा रखी थी, will happen upon you वो तुम्हारे ऊपर because होगा, my anointing is upon you. क्योंकि मेरा अभिषेक तुम्हारे ऊपर है। Anointed day is an important day. अभिषेक का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण Anointed दिन day है। is a blessed day. अभिषेक दिन तुम्हारे लिए Oh, my आशीर्वादित दिन anointing है। is upon you. मेरा अभिषेक तुम्हारे ऊपर You है। will surely see all my blessings, says the Lord. तुम निश्चित रूप से मेरे सारे आशीर्वादों को Hallelujah. देखोगे, Once प्रभु again, let कहता us है। tell to our God. एक बार फिर से हमारे Thank you, परमेश्वर को God, for कहेंगे, your anointing. धन्यवाद परमेश्वर तुम्हारे Thank अभिषेक you, के God, लिए। for your anointing. धन्यवाद परमेश्वर Thank तुम्हारे you for अभिषेक के लिए। anointing me. मुझे अभिषेक बना Thank देने you, के God, लिए for your धन्यवाद। anointing. तुम्हारे अभिषेक के लिए Thank you for धन्यवाद। anointing me. मुझे अभिषेक बनाने I के लिए am धन्यवाद। special for you. मैं तुम्हारे लिए विशेष I am हूँ। special in my मैं family मेरे परिवार में because विशेष you हूँ। selected me. तुमने मुझे चुना You है। anointed me. तुमने मुझे अभिषेक I am an किया। anointed of God. मैं परमेश्वर का अभिषेक I हूँ। will see the anointed future in my life. मैं मेरे जीवन में अभिषेक भविष्य देखूंगा। जब दाऊद फिलिस्ती को हाँ। मारकर लौटा, हाँ। तब अब्नेर ने उसे फिलिस्ती का सिर हाथ में लिए हुए शाऊल के सामने पहुंचाया। God anointed you. परमेश्वर ने तुम्हें अभिषेक आपके लिए उसके God लिए हाँ anointed कहना है। you. परमेश्वर ने तुम्हें अभिषेक God किया। anointed you. परमेश्वर ने तुम्हें अभिषेक You are किया। anointed. तुम अभिषिक्त हो। Why he anointed you? उसने तुमको क्यों अभिषेक To किया? hold something in your hand. तुम्हारे हाथ में कुछ पकड़ने के लिए। To hold something in your hand. तुम्हारे हाथ में कुछ पकड़ने के लिए। Hallelujah. Not a money bag. पैसे का थैली नहीं, Not a money bag. पैसे का थैली नहीं। God anointed you. परमेश्वर ने तुम्हें अभिषेक God किया। anointed you. परमेश्वर ने तुम्हें अभिषेक, Hold the head of the
enemy. और शत्रु के सर को हाथ में पकड़ने God के लिए anointed you परमेश्वर तुम्हें अभिषेक to किया hold the victory. तुम्हें विजय पकड़ने के To लिए hold the victory. विजय को The पकड़ने Lord के is लिए telling to every anointed who believe in your anointing, परमेश्वर हर एक अभिषेक से बात कर रहा है जो अपने अभिषेक के ऊपर विश्वास everyone रखता who है believe in the anointing of God. हर कोई जो परमेश्वर के अभिषेक के ऊपर Do you विश्वास believe that रखता God है has anointed you? क्या तुम्हारा विश्वास है कि परमेश्वर ने तुम्हें अभिषेक The किया Lord है is telling like this, प्रभु ऐसे कह रहा है oh, you are my anointed. तुम मेरे अभिषेक You हो are my anointed in the family. परिवार में तुम मेरे You are अभिषेक my हो anointed among your brothers. तुम्हारे भाइयों के बीच में You तुम are अभिषेक anointed हो among all your relatives. तुम्हारे सारे परिवार के बीच में तुम I अभिषेक हो want you to hold the victory. और मैं चाहता हूं कि तुम विजय को लेके God चलो will place His victory only in the hands of the anointed. परमेश्वर अपना विजय सिर्फ अभिषिक्तों के हाथ में Oh, the रखेगा Lord is telling to you today, प्रभु तुम्हें आज you कह are रहा my है anointed. तुम मेरे अभिषेक I have placed my victory in your hands. मैंने मेरे विजय को तुम्हारे हाथ में रखा है Oh, the Lord is telling प्रभु कह रहा to है every anointed. हर अभिषेक Oh, को the Lord is telling प्रभु कह your रहा है hand will not be in empty hand. तुम्हारा हाथ कभी भी खाली हाथ Your नहीं hand होगा will not be an empty hand. तुम्हारा हाथ कभी भी खाली Your नहीं hand होगा will hold the victories of God. तुम्हारे हाथ God anointed you परमेश्वर ने तुम्हें अभिषेक to किया not be a failed person. तुम्हें कोई नाकाम व्यक्ति होने के लिए Anointed नहीं you परमेश्वर ने to तुम्हें be a अभिषेक person किया of victory. तुम्हें एक विजय का व्यक्ति When David is telling to himself, जब दावीद अपने आप से कह रहा है forget not that day उस दिन को मत भूलो when all my brothers were against me. जब सारे मेरे भाई मेरे विरुद्ध थे Oh, that day I went to the battleground. उस दिन मैं युद्ध भूमि में गया I था went as a tiffin carrier. मैं एक डब्बा ले जाने वाला ऐसे गया था Dabba wala is famous in Bombay, no? मुंबई में डब्बा वाला बहुत ही फेमस Okay, है I went as a dabba wala to that battleground. उस युद्ध भूमि में मैं डब्बे वाले की तरह गया So था when I entered there, और लेकिन जब मैं वहां पे मैंने जब प्रवेश किया I put my dabba there मैंने मेरा डब्बा and I बाजू में was रखा watching the battleground. और उस युद्ध भूमि को मैं देख रहा Something था was happening inside me. कुछ मेरे अंदर हो रहा था Something was happening, forcing me. कुछ मुझे उस दबाव में डाल रहा था Somebody say, something is forcing me. कोई मुझे दबाव डाल रहा Something था is happening कोई today. में हो रहा था Hallelujah. Something is generating in me. मेरे अंदर कुछ पैदा हो रहा Something था is happening in me. कुछ मेरे अंदर हो रहा Oh, था not making me to be quiet. मुझे चुपचाप बैठने के लिए I नहीं, want to talk. मुझे बात I करनी want to है, speak. मुझे बात I करनी want to है, do. मुझे कुछ I want to करना है, move. मुझे I want to कार्य move with the करना है। power of God. परमेश्वर के सामर्थ के साथ मुझे आगे That day, David said, that day my elder brother came. उस दिन दावीद ने कहा मेरा बड़ा भाई He आया, came and he mistreated me. वो आया और मुझे उसने मेरे साथ गैर He व्यवहार insulted किया me. उसने मेरा अपमान He किया tried to stop me. उसने मुझे रोकने की But I कोशिश couldn't की stop. लेकिन मैं रोक नहीं Because the पाया anointing was upon क्योंकि me. मेरे ऊपर अभिषेक था Anointed will never be quiet. अभिषेक कभी भी चुपचाप नहीं बैठेंगे Anointed will never be quiet. अभिषेक कभी भी चुपचाप नहीं बैठेंगे Hallelujah. Anointed never be quiet if something is going wrong. और कुछ गलत हो रहा हो तो अभिषेक कभी भी चुपचाप नहीं बैठेंगे David's brother said like this, दावीद के भाई ने ऐसे कहा why did you come here? तुम यहाँ पे क्यों आए Go and take care of the sheep. तुम जाओ और तुम्हारे भेड़ों की Where did you उनका leave ख्याल that रखो little flocks? वो तुम्हारे छोटे भेड़ तुमने कहाँ छोड़े Go back there. जाओ वहां पे And the story says like this, और एक कहानी ऐसे कहती है David went and continued the matter with somebody again. और दावीद पीछे चला गया और दूसरे के साथ वही उसने बात की Anointed people never be quiet when the trouble is there for his people. और उनके लोगों के साथ जब तकलीफ होती है तभी अभिषेक लोग कभी भी चुपचाप नहीं बैठते If something is happening to the people of God, anointed will be never be quiet. अगर परमेश्वर के लोगों के साथ कुछ घटा तो अभिषेक लोग कभी भी चुपचाप नहीं Oh, बैठते something force will be there inside. उनके अंदर कुछ ऐसे फोर्स होता है This year the Lord is telling, इस साल परमेश्वर कह रहा you है will never be quiet. तुम कभी भी शांत नहीं You will बैठोगे never be quiet. तुम कभी भी If शांत you are नहीं believing बैठोगे। me, अगर तुम मुझ पे the Lord विश्वास रख रहे says, हो, प्रभु कहता you will है, never be quiet. तुम कभी भी चुपचाप नहीं Something will बैठोगे। happen inside of you. तुम्हारे अंदर कुछ होगा Oh, something will force you. ताकत You will तुम्हारे never अंदर be रहेगी। quiet until the victory come to your hand. जब तक तुम्हारे हाथ में विजय ना आए तब तक तुम चुपचाप नहीं बैठोगे Many times it happened to me. और कई बार मेरे साथ ऐसे हुआ है Many stories are to say to you. तुमसे कई कहानियां बतानी है When something trouble happened to the people of God, जब लोगों के परमेश्वर के लोगों के साथ कुछ गलत होता है if something happened to the pastors, अगर पास्टर्स के if साथ कुछ something गलत happened to होता the है poor people, अगर गरीबों के साथ कुछ if गलत होता something है happened to the church, अगर चर्च के साथ कुछ होता है I will never be quiet. मैं कभी भी चुपचाप नहीं बैठता My anointing will rise up. मेरा अभिषेक खड़ा हो जाता है Something, the spiritual man will rise up. और कुछ आत्मिक व्यक्ति खड़ा हो जाता Oh, है it will, that situation will be very difficult. और वो परिस्थिति बहुत ही गलत होती है Everybody will be say like this.
और हर कोई ऐसे कहता Oh, है, now we cannot do anything. अब हम कुछ नहीं कर सकते। Oh, it is very big problem. और ये बहुत ही बड़ी Oh, we समस्या have है। never seen such thing. हमने ये चीज कभी भी नहीं देखी The है। story says like this. और एक कहानी ऐसे All कहती the है, Israelites, इजराइल के सारे they लोग went in their tent and they started talking like this. वो अपने तंबू में जाके उन्होंने ऐसे बात करना शुरुआत किया, Oh, something we have never seen like this. ऐसा आपने कभी भी नहीं देखा Oh, है। this Goliath is very new. ये गोलायत है, बहुत ही बड़ा He's है, very dangerous fellow. ये बहुत ही खतरनाक He's very व्यक्ति है। experiential fellow. ये इसको बहुत ही अनुभव Nobody है। can fight against him. कोई भी इसके विरुद्ध लड़ नहीं Oh, सकता। discussion is going in the tents. और उस तंबू में ऐसे ऐसे बातचीत चल रही थी। Let me tell you something. मैं तुमको बताना चाहता हूँ, Those who don't have an anointing, they will be with this discussion. और जिनके पास अभिषेक नहीं होता है, ऐसे लोग ऐसे ऐसे बातों में फंसे रहते हैं। They will be keep on telling. वो सिर्फ बात करते रहते हैं। Oh, see, this Goliath is like this. देखो गोलायत ऐसा है, Who will go and fight? कौन जाके लड़ेगा? Oh, he is an experiential man. और वो भी व्यक्ति है, हमारे पास कोई नहीं है। Oh, they will be only making the talkings and वो stories. सिर्फ बात और कहानियां बनाते हैं। But anointed will never be quiet. लेकिन अभिषेक कभी भी चुपचाप नहीं बैठता। Anointed will not talk. अभिषेक बात नहीं करता। They will enter into the field. युद्ध भूमि में वो प्रवेश Amen? करते हैं। Are you ready to enter in the field? क्या तुम युद्ध भूमि में प्रवेश करने के Are लिए you तैयार ready हो? to step into the battleground? क्या तुम युद्ध भूमि में पैर रखने के लिए तैयार Are हो? you ready to take the risk? क्या तुम उस खतरे को मोड़ लेने के लिए? David said like this. दावीद ने ऐसे कहा, What this Philistine will do? ये फिलिस्ती क्या करेगा? What this uncircumcised fellow will do? ये खतना ना किया हुआ व्यक्ति क्या We करेगा? are the people of हम God. परमेश्वर के लोग We हैं। are the anointed of हम God. परमेश्वर के अभिषिक्त हैं। Can we say like that? क्या हम ऐसे कह सकते We हैं? are the anointed of हम God. परमेश्वर के We अभिषिक्त are the हैं। people of हम God. परमेश्वर के लोग हैं। God anointed us. परमेश्वर ने हमें अभिषेक Anointing किया is है। upon us. परमेश्वर Be का quiet. अभिषेक है। हम चुपचाप कभी नहीं Hallelujah. बैठेंगे। We will never compromise. हम कभी भी समझौता We नहीं will करेंगे। go forward. हम आगे बढ़ेंगे। We will move forward. हम आगे बढ़ेंगे। We will go with anointing. हम अभिषेक के The साथ Lord is आगे telling, बढ़ेंगे। प्रभु कह रहा है, the anointed will never be quiet. अभिषेक कभी भी चुपचाप नहीं बैठेगा। Move with the power of God. और वो परमेश्वर के सामर्थ के साथ Today आगे बढ़ना God is चाहते telling to हैं। everyone who is present here, हर कोई जो यहाँ पे उपस्थित है उससे परमेश्वर कह रहा है, every anointed, हर अभिषेक get ready to move forward. आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। Get ready to move forward. आगे बढ़ने के लिए तैयार हो The जाओ। Lord is telling, प्रभु कह रहा है, as you move forward in my anointing, जैसे तुम मेरे अभिषेक में आगे बढ़ते हो, as you move forward in my anointing. जैसे तुम मेरे अभिषेक में आगे बढ़ते Oh, हो। David made a decision. दावीद ने ऐसे निर्णय I लिया, want to move forward. मुझे आगे बढ़ना है। Suddenly Saul want to take that glory. अचानक शाऊल वो महिमा को ले जाना चाहता He था। says like this, उसने ऐसे कहा, oh David, you are a small boy, ए दावीद तुम छोटे but बच्चे हो, anyhow you made a decision. लेकिन फिर भी तुमने निर्णय तो किया I है। couldn't make the decision. मैं निर्णय नहीं ले पाया। Anointed only will make the decisions. और अभिषेक ही सिर्फ निर्णय ले पाते हैं। Anointed are short, अभिषेक जरूर छोटे होते हैं। though anointed are in the field, अभिषेक वो जंगल में भी होते हैं। though anointed are in the wilderness, अभिषेक जंगल में भी हो सकते they हैं, only will make the decision. लेकिन वही लोग निर्णय लेते हैं। The people who don't have anointing, if they are in the palace, also no use. और जो लोग जिनके ऊपर अभिषेक नहीं है, अगर वो राजमहल में भी हो तो They उनका कोई only उपयोग they will नहीं। be seeing the Goliath, but don't make वो decision. सिर्फ गोलायत को देखते रहते हैं, लेकिन वो निर्णय नहीं लेते। This year, इस साल you will make very good decisions for God. परमेश्वर के लिए तुम बहुत ही अच्छे निर्णय लोगे। You will make very good decision for the church. चर्च के लिए तुम बहुत अच्छे निर्णय लोगे। Saul said like this, शाऊल ने ऐसे David, कहा, this is your decision. दावीद ये तुम्हारा निर्णय है। Let me help you out with my clothes. मैं मेरे कपड़ों से तुम्हारी मदद करना Let me चाहता help me हूँ। out with my helmet. मेरे हेलमेट के साथ मैं तुम्हारी Let me मदद help you करना out चाहता with हूँ। my sword. मेरे तलवार के साथ मैं तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ। David took that one, और दावीद ने वो ले लिया, wore his dress, उस कपड़ों को उसने पहना। took the helmet of Saul. शाऊल का हेलमेट उसने लिया, It's not fitting to him. लेकिन वो उसको फिट नहीं हो रहा था। Why you know? क्यों आप जानते हो? Saul had a long neck. क्योंकि शाऊल का लंबा He's a गर्दन था। long neck fellow, वो लंबी गर्दन का व्यक्ति but था, never gave his head to God. लेकिन अपना सर उसने कभी भी परमेश्वर को नहीं दिया। So many people are like that. कई सारे लोग वैसे होते They हैं, know to walk like this. उनको ऐसे चलना होता है, They cannot give their head to God. वो अपने सर को परमेश्वर को दे नहीं सकते। David's head was always ready with anointing. लेकिन दावीद का सर हमेशा अभिषेक के लिए तैयार था। He said like this, उसने ऐसे I कहा, cannot wear this helmet. मैं ये हेलमेट पहन नहीं If I सकता। wear this helmet, अगर मैं ये हेलमेट पहनूं, you are blocking my anointing. तुम मेरे अभिषेक को रुकावट कर रहे Already हो। I am anointed. मैं पहले से अभिषेक For हूँ। my anointing, I no need your helmet. मेरे अभिषेक के लिए तुम्हारे हेलमेट की जरूरत नहीं The है। Lord is speaking to you. प्रभु क्या आपसे बात कर रहा है? Anointed, अभिषेक तो you no need anybody hand upon you.
तुम्हारे ऊपर किसी के भी हाथ की जरूरत You're already anointed. तुम पहले से अभिषेक You're already तुम anointed. पहले से अभिषेक You no need anybody's favor upon you. तुम्हारे ऊपर किसी की भी दया की You no जरूरत need नहीं है anybody's support upon you. तुम्हारे ऊपर किसी के भी सपोर्ट की Do जरूरत the नहीं Lord है is speaking to somebody? क्या प्रभु किसी से बात कर रहा Do है you believe that you no need anybody's support? क्या तुम्हें लगता है कि You तुम्हें no कोई need किसी के anybody support favor. की जरूरत नहीं है Some people will say like this. कुछ लोग ऐसे कहेंगे Oh, if I bless, then you will be blessed. अगर मैं तुम्हें आशीर्वाद करूं तब तुम आशीर्वादित The Lord is बनोगे telling, प्रभु कहता my है anointing is upon you. मेरा अभिषेक तुम्हारे ऊपर है My blessing is already there on you. मेरे आशीर्वाद पहले से तुम्हारे ऊपर Be है careful that people should not block your anointing. और सावधानी से रहो कि तुम्हारे अभिषेक को कोई लोग रुकावट ना Don't बने allow the people to put their helmet upon you. लोगों को आप अनुमति मत दो कि उनके हेलमेट हो तुम्हारे ऊपर रखे David cleanly understood. दाऊद वो अच्छी तरह समझ गया Saul, I no need your helmet. शौल मुझे तुम्हारे हेलमेट की जरूरत नहीं है I don't need because I am anointed. क्योंकि मैं अभिषिक्त हूँ Already God's anointing is upon me. पहले से परमेश्वर का अभिषेक मेरे ऊपर है And he tried to walk. और वो चलना उसने उसने प्रयत्न He किया couldn't walk. लेकिन वो चल नहीं पाया And he said like this, और उसने ऐसे I'll कहा remove these all things. ये सारी चीजें मैं निकालूंगा I will just walk in my anointing. मैं सिर्फ मेरे अभिषेक में चलूंगा I will go forward with my anointing. मेरे अभिषेक के साथ मैं आगे Come on, say, बढ़ूंगा I will move forward in my anointing. मेरे अभिषेक में मैं आगे Come on, बढ़ूंगा everybody say, I will move forward in my anointing. हर कोई कहो मैं मेरे अभिषेक I में will आगे move forward in the anointing what God has poured upon me. जो अभिषेक परमेश्वर ने मेरे ऊपर उंडेला है उसमें मैं आगे बढ़ूंगा Oh, I will move in my anointing. मैं मेरे अभिषेक में I आगे will move बढ़ूंगा forward in my anointing. मेरे अभिषेक में मैं Oh, I आगे will बढ़ूंगा move forward in the anointing which is resting upon me. जो अभिषेक मेरे ऊपर उतरा है उसमें मैं आगे बढ़ूंगा The Lord is telling like this. प्रभु ऐसे कह रहा Today है Lord is telling to somebody, आज प्रभु किसी से कह रहा है when you faithfully move forward in my anointing, जब तुम मेरे अभिषेक में विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे I will place my victory in you. मैं मेरा विजय तुम में रखूंगा I will place my victory in your मैं hands. मेरा विजय तुम्हारे हाथों में रखूंगा David said like this, दाऊद ने ऐसे कहा oh that day उस दिन when I was moving forward, जब मैं आगे बढ़ रहा this था big giant was coming opposite to me. और एक बड़ा बड़ा व्यक्ति मेरे मेरे विरुद्ध आ रहा Oh, था all the people were scared, सारे लोग डर गए but थे I was not afraid. लेकिन मैं डरा हुआ नहीं I था know मैं जानता था anointing is upon me. कि अभिषेक मेरे ऊपर Today है the Lord is telling, आज प्रभु कह रहा है know your anointing. तुम्हारे अभिषेक को जानो You are anointed. तुम अभिषिक्त हो You are anointed. तुम अभिषिक्त हो God anointed you. परमेश्वर ने तुम्हें अभिषेक Move किया forward with anointing. वो अभिषेक में आगे You बढ़ो don't need any weapon to you तुमको कोई भी because शस्त्र the की जरूरत anointing नहीं is है resting upon you. कि परमेश्वर का अभिषेक तुम्हारे ऊपर उतरा हुआ है As you move forward in the anointing, जैसे तुम अभिषेक में आगे बढ़ते हो Goliath was moving forward. गोलायत आगे बढ़ रहा था He was moving forward वो आगे बढ़ रहा था with his experience. उसके अनुभव के साथ He was moving forward वो आगे बढ़ रहा था with his sword. उसके तलवार के He was साथ moving forward वो आगे बढ़ रहा था with all his dress and his उसके armies. सारे ड्रेस से और उसके सारे शस्त्रों से He was prepared and coming. वो तैयार होके आ He's रहा telling था like this. वो ऐसे कह रहा था Oh, I will move with experience. मैं अनुभव के साथ आगे बढ़ूंगा David is telling, और दाऊद कह I रहा will था move with anointing. मैं अभिषेक के साथ आगे The बढ़ूंगा Lord is telling, प्रभु कह रहा है now the time has come. अब समय आ चुका Anointed है will move forward. अब अभिषेक आगे Anointed will बढ़ेंगे move forward अभिषेक आगे to बढ़ेंगे put down all the experiential people. सारे अनुभवी लोगों को नीचे डालने के लिए Whether you believe or not, I don't know. I believe this one very much. तुम्हारा इसके ऊपर विश्वास है कि नहीं लेकिन मेरा विश्वास The जरूर Lord है is telling, प्रभु कह रहा है many experiential people will fall down now. कितने सारे Hallelujah. The Lord is telling, प्रभु कह रहा है move in my anointing. मेरे अभिषेक में आगे Move in बढ़ो my anointing. मेरे अभिषेक में I आगे want to बढ़ो place my victory in your hand. मेरे विजय को मैं तुम्हारे हाथ में रखना Oh, चाहता this हूँ year the Lord is telling, इस साल प्रभु कह रहा है everyone हर कोई who move in the anointing of God, जो परमेश्वर के अभिषेक में आगे बढ़ेगा God will place the victory upon your hands. परमेश्वर तुम्हारे हाथों पे विजय और विजय रखेगा Oh, the Lord is telling, प्रभु कह रहा है when David moved forward in the anointing, जब दावीद उस अभिषेक में आगे बढ़ा he returned back with the success. वो सफलता के साथ वापस आ Oh, गया this year, इस साल oh, this year the Lord is telling, इस साल प्रभु कह रहा I है will place my victory in your hands. मैं मेरा विजय तुम्हारे हाथों पे रखता हूँ Oh, anointed of God. परमेश्वर के अभिषेक तो Oh, anointed of God. परमेश्वर के अभिषेक Who तो all who believe in the anointing of जो God, सारे लोग परमेश्वर के अभिषेक के the ऊपर Lord is विश्वास रखते telling, हैं। प्रभु कह रहा है I will place my victory. मैं मेरे विजय को I तुम्हारे will हाथों में place my रखूंगा। victory in your hand. मैं मेरे विजय को तुम्हारे हाथ में रखूंगा। David is telling, दावीद कह रहा oh है my soul, हे मेरे प्राण forget not his benefits. उसके उपकारों को कभी भी मत भूलना That day, उस दिन
That day, उस when दिन all were fearing, जब सारे लोग तुम्हें डर रहे थे, all were failed, जब सारे लोग नाकाम हुए थे, that day, उस दिन Lord has placed the victory in my hand. परमेश्वर ने विजय मेरे हाथों में रख He's दिया. telling to his mind, उसने अपने मन He's से telling to his कहा, spirit, अपने आत्मा से कहा, He's telling to his eyes, उसके आंखों से He's कहा, telling to his heart, वो अपने हृदय से कह रहा forget था, not the benefits of God. परमेश्वर के सारे उपकारों को मत Oh, भूल. He placed all victory in your hand. उसने सारे विजय को तुम्हारे Oh, हाथों my में रखा soul, है. हे मेरे प्राण, forget not the benefits of God. परमेश्वर के उपकारों को मत भूल. This is what the Lord is telling. प्रभु ये कह रहा है, Everyone who believe in the anointing, हर कोई जो अभिषेक के ऊपर विश्वास everyone who रखता है, believe that God has anointed you, हर कोई विश्वास रखता है कि परमेश्वर ने तुम्हें अभिषेक किया say है. to the Lord like this. प्रभु से ऐसे कहो, Raise up your both hands. अपने दोनों हाथ ऊपर उठाओ Say to God like this. और प्रभु से ऐसे कहो, Thank you, God. धन्यवाद प्रभु, You are my God. तुम मेरे प्रभु हो. Thank you, God, धन्यवाद for परमेश्वर, choosing me. मुझे चुनने के लिए. Thank you, God, धन्यवाद for परमेश्वर, anointing me. मुझे अभिषेक करने Thank के you, Lord, लिए. your anointing is resting upon me. धन्यवाद परमेश्वर, तुम्हारा अभिषेक मेरे ऊपर Your उतरा anointing हुआ is है. resting upon me. तुम्हारा अभिषेक मेरे ऊपर उतरा हुआ Oh, है. I believe मेरा विश्वास है, I am an anointed of God. मैं परमेश्वर का अभिषेक, Believe in my God. मैं मेरे परमेश्वर के ऊपर विश्वास I रखता believe in हूँ. my God. मैं मेरे परमेश्वर के ऊपर I विश्वास believe in the रखता हूँ. anointing of God. परमेश्वर के अभिषेक के ऊपर मैं My विश्वास God रखता has हूँ. anointed me. मेरे परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है. My God has anointed me मेरे परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया to है, carry the victory of God. परमेश्वर के विजय को ले जाने के लिए, Hold the enemy head. शत्रु के सर को हाथ में रखने के लिए.